हाँ भाई, तो आई हैव एक्चुअली डिसाइडेड टू मेक दिस पार्ट ऑफ माई कार, जो पिछला हिस्सा है गाड़ी का, माई स्टूडियो, स्पेसिफिकली माई स्टूडियो। बिकॉज अगर देखा जाए तो ज़्यादातर मैं अपना टाइम तो यहीं गुजारता हूँ, तो वाई नॉट। विद दैट बीइंग सेड, वेलकम टू सेठ साहब स्टूडियो। आज मैं रिव्यू करूँगा, स्टूडियो में हम बैठे हुए हैं, इम्पॉर्टेंट है। मैं रिव्यू करूँगा कैनन M50, जो मेरा कैमरा है। मैंने लिया था इन दिसंबर 2018 और पिछले 3-4 महीने से मैंने काफ़ी रिगरसली यूज़ किया है। तो नाउ आई थिंक इट्स अबाउट टाइम कि आई कैन मेक अ रिव्यू ऑन इट एंड गिव यू गाइज माई परस्पेक्टिव ऑफ व्हाट आई हैव बीन थ्रू विद दिस कैमरा एंड व्हाई इट्स एक्चुअली अ गुड कैमरा फॉर एनी एंट्री लेवल व्लॉगर, यही बोलता है ना। खैर, जो भी बोलते हैं, कैनन M50 इज़ एक्चुअली अ कैमरा रिलीज्ड बाय कैनन। कैनन की जो M सीरीज़ है उसमें इट इज़ सपोज्ड टू बी वन ऑफ द एंट्री लेवल कैमराज, बाकी इट गोज़ अप, जिसमें काफ़ी सारी फीचर्स दबा के मिक्स करके एक कॉम्पैक्ट मिररलेस कैमरा में उन्होंने डाल के रिलीज़ किया। आई थिंक इट्स एक्चुअली प्रीटी good for an entry level camera because it has all the features that I would need. I would consider myself as someone who's starting off, who doesn't need everything at this moment. जितनी मेरी ज़रूरत है उसके हिसाब से I think it's actually a pretty good camera. Alright, before I jump into the review, I do want to say is कि मैं एक vlogger हूँ और ये review एक vlogger के perspective से आएगा. I'm not a photographer, not primarily a photographer. I do vlog a lot, shoot a lot of videos. मतलब photography में इसमें 20% करता हूँ, 80% is all video recording. So do remember कि this is going to be from a vlogger's perspective. So let's move on with the box. It comes in a box. ये box है, I don't even know why I'm showing this. इसके अंदर it comes with the mirrorless camera itself. Lens आता है, kit lens जो इसकी है, it's different from other kit lenses that you might see in the market with other cameras, क्योंकि दूसरी जो होती है 18mm to 55 होती है और ये वाली जो है it's 15 to 45 mm। तो जब आप vlogging कर रहे होते हो as a vlogger, when you have the camera front, ज़्यादा zoomed in नहीं होता because it's not 18mm, it's 14mm, so that kind of gives an advantage from other kit lenses that are in the market. So it comes in two colors, white and black, जो box में बना हुआ है, and I chose white and that's because क्योंकि I thought आगे जो भी मैं कैमरास लूँगा उसमें मुझे तो फिर मौका नहीं मिलेगा वाइट कलर के कैमरा लेने का, तो that kind of gives a little uniqueness. My first camera, white color, get the idea. 24 मेगापिक्सल का कैमरा है, it has a flash mount और उसी flash mount में you can fix your mic if you're a vlogger like me. बाकी it has Wi-Fi and Bluetooth, तो जब भी आप picture लो and you're on the go, आपके पास laptop नहीं है, you can connect directly to your phone with the Wi-Fi or Bluetooth, whichever one you want, and you can transfer the pictures and upload it right away. Also has a HDMI output और उस सब के ऊपर जो सारे पैसे हैं वो इस चीज़ के। Yes, it has a flip screen, तो if you're someone like me who vlogs a lot and जो कैमरा मुंह पे रख के बात करता है, तो it's actually good, आपको पता होता है स्क्रीन में क्या हो रहा है when you're looking into the lens, तो it kind of gives you an idea. You don't have to look back into the camera all the time कि भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो in my opinion that's a good, but it could be a distraction as well, क्योंकि शुरू में जब मैं flip screen करके vlog करता था, अब now I know what's going on, but शुरू में जब मैं करता था तो distraction भी होती थी। बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि मैं स्क्रीन में देखता था, लेंस में नहीं देखता, तो that's kind of like a distraction, but it's not a drawback, मतलब ये you get used to it after a while. अब one thing that I want to point out is जो बैटरी इसके साथ आती है वो काफ़ी छोटी बैटरी है compared to other Canon cameras. I believe this is a mirrorless camera. It's a compact mirrorless camera. तो इस वजह से इन्होंने बैटरी भी छोटी रखी है, but it's a drawback in my opinion क्योंकि बैटरी लाइफ in compared to other Canon cameras or any other mirrorless camera जो available है मार्केट में, इसमें काफ़ी कम बैटरी लाइफ है इसकी। Now let me give you an example for that. बासित भाई जब इंडियाना से आए थे तो I think वो Canon 60D लाए थे और मेरा Canon M50 था, और बासित भाई ने जो पूरा दिन हमने व्लॉगिंग की थी उसमें उन्होंने एक भी दफ़ा बैटरी चेंज नहीं की थी, और मैंने compared to me I had to change all 3 बैटरीज, ये वाली और 2 मैंने एक्स्ट्रा बैटरीज ली हुई हैं।
तो वो सब मुझे रोटेट करनी पड़ी थी। और एक पॉइंट तो ये भी आया था where I had to recharge it on my way, मतलब जब हम लोग रास्ते में थे तो मैंने बैटरी रिचार्ज करने पे लगा दिया था ताकि I wouldn't run out of all of them। तो that's kind of like a drawback। लेकिन अगर आप डेली व्लॉगिंग करते हो या आपकी जो रेगुलर व्लॉगिंग है या इवन रेगुलर फोटोग्राफी, लाइक रेगुलर व्लॉगिंग इट लास्ट्स मी 1 डे ईजिली। मतलब ये बैटरी मैं लेके निकलता हूँ और घर आता हूँ तब भी ये बैटरी ज़्यादा ड्रेन नहीं हुई भी होती। बट इफ़ यू आर गोइंग आउट ऑन लाइक एन एडवेंचर, या जिस तरह मैं डिस्कवर लॉस एंजलिस या डिस्कवर न्यूयॉर्क में निकला था ये कैमरा लेके, तो आई हैड टू मेक श्योर टू हैव ऑल 3 बैटरीज फुल चार्ज पे। और जब मैं रात को घर आता था तो तीनों बैटरीज ड्रेन हुई भी होती थी। तो दैट कुड काइंड ऑफ गिव यू एन आइडिया कि इसकी बैटरी लाइफ कितनी छोटी है। लेकिन मेरा काम चल जाता है। मतलब जब मैं रेगुलर व्लॉगिंग करता हूँ लाइक दिस, तो कभी कभार तो ये 2 व्लॉग्स तक चल जाती है। तो इट काइंड ऑफ डिपेंड्स हाउ मच योर यूसेज इज, बट कंपेयर टू अदर कैमरास दैट आर आउट देयर इसकी बैटरी लाइफ कम है। Now moving on to the camera inside, मैंने आज तक सिर्फ 3 इसके ऑप्शंस यूज किए हैं। एक ऑप्शन है इसका मूवी का, और फिर एक ऑप्शन है it says scene, where आप चूज कर सकते हो सीन को डिपेंडिंग ऑन वेयर यू आर। इफ यू वांट टू शूट अ पोर्ट्रेट तो आप पोर्ट्रेट मोड पे डाल सकते हो। पीछे आई थिंक काफी ब्लर हो जाता है। एंड देन इफ यू आर शूटिंग अ लैंडस्केप यू कैन पुट इट इनटू लैंडस्केप मोड। इफ यू आर पुटिंग अ सेल्फ पोर्ट्रेट दैट मींस सेल्फ पोर्ट्रेट ऑप्शन पे डाल सकते हो। तो ये दूसरा ऑप्शन है जो मैंने यूज किया। बाकी तीसरा ऑप्शन इज ऑटो। मैनुअल आई बेयरली यूज इट। एक ऐसा मौका आया होगा जब मैंने मैनुअल यूज किया होगा पूरे 3 महीने में, बट आई हैव always been using auto, scene and movie recording. Now do remember it is also a touch screen camera, that means आप touch करके use कर सकते हो। So all the नई generation वाले लोग जिनको buttons पसंद नहीं है वो touch screen use कर सकते हैं, but buttons are necessary। मतलब menu में जाने के लिए आप touch screen use नहीं कर सकते, you have to touch the menu button। Now moving on to the frames per second, it shoots in 24 fps, 30 पे भी shoot करता है, 60 पे भी करता है और 120 पे भी करता है। लेकिन there is a catch, बताता हूँ। अब जो 30 fps है उस पे ये सिर्फ आपको 1080 रेजोल्यूशन देगा। 60 पे दोनों 720 1080 दोनों देगा। लेकिन जो 120 fps है which means the slow-mo where you can slow down the frame and then it kind of looks pretty smooth, उसमें ये सिर्फ आपको 720 fps देगा। तो that is kind of like a drawback in this कि ये 1080 पिक्सल में 120 fps को शूट नहीं करता। अब मेरे लिए at this point 120 fps 720 में सही है, मेरा काम चल जाता है। मेरे व्लॉग्स 80% जो होते हैं दैट्स विदाउट स्लो-मो। मतलब इवन ट्रांजिशन समटाइम्स आर जस्ट क्विक ट्रांजिशंस। लेकिन अगर कोई ऐसा मौका आता है जब मुझे 1080 पिक्सल में ही फुटेज चाहिए 120 fps की, तो मैं अपना फोन यूज कर लेता हूँ। दैट वर्क्स जस्ट फाइन फॉर मी एज वेल। एक चीज जो ज्यादा लोगों को पता नहीं है इस कैमरा के बारे में वो ये है कि ये 4K में भी शूट करता है। यस, दिस इज वन ऑफ द ओनली एंट्री लेवल कैमराज इन द मार्केट जो 4K में भी शूट करता है। इट वर्क्स 4K। नाउ ऑब्वियसली 4K में ये 60 fps तो शूट नहीं करता, ना ही ये 30 शूट करता है, बट इट डज शूट 4K इन 24 fps। पर्सनली मुझे आज तक जरूरत नहीं पड़ी है 4K की, बट इफ यू आर समवन हु वांट्स 4K इन अ कैमरा, दिस कैमरा हैज 4K। इस कैमरे के अंदर एक इंटरनल माइक भी है। मैंने एक्सटर्नल माइक लिया हुआ है बट यू डोंट हैव टू, क्योंकि इसका जो इंटरनल माइक है वो भी बहुत अच्छा है। मतलब जो अभी हम लोग बात कर रहे हैं, दैट आई एम टॉकिंग टू यू राइट नाउ, ये पूरे इंटरनल माइक की आवाज़ है। मैंने कोई एक्सटर्नल माइक नहीं लगाया हुआ इसमें। दूसरी चीज़ जो मैंने नोट की है, इसकी स्क्रीन रेजोल्यूशन एक तो इन माय ओपिनियन काफ़ी अच्छा है। मैंने दूसरे कैमरास की स्क्रीन रेजोल्यूशन देखी और मुझे इनका सबसे अच्छा लगा है। मैंने A6500 का देखा है, Canon 60D का भी देखा है। In my opinion, this is the best screen resolution that I have seen. Secondly, the display brightness of the screen बहुत अच्छी है। मतलब धूप में आप निकले हुए हो and you put the brightness all the way up, आपको हर चीज़ काफ़ी clearly नज़र आएगी स्क्रीन पे। तो that I thought was a pretty good thing in this camera as well. अब क्योंकि इस कैमरा की बैटरी लाइफ इतनी कोई ख़ास नहीं है, it does have a power saving option. That means अगर आपका कैमरा कहीं साइड पे पड़ा हुआ है and it's on, उसकी डिस्प्ले बंद हो जाएगी, वो खुद ही खुद बंद भी हो जाएगा। एंड लाइक यू कैन पुट लाइक अ टाइमर, यू नो, इट हैज़ अ ऑटो पावर ऑफ। दैट मीन्स 30 सेकेंड्स इनएक्टिव होते ही ये कैमरा खुद ही खुद बंद हो जाएगा। मैंने 1 मिनट पे रखा हुआ है। बहुत दफ़ा मैं गाड़ी चला रहा होता हूँ और शूट कर रहा होता हूँ तो मैं कैमरा साइड पे रख देता हूँ शूट करने के बाद और 1 मिनट में खुद ही खुद बंद हो जाता है। दैट सेव्स अ लॉट ऑफ बैटरी फॉर मी। इसके अलावा इफ़ यू समवन लाइक मी हु चेंजेस सीन्स वेरी रैपिडली, काफ़ी रैपिडली एक ही शॉट में
काफ़ी सीन्स चेंज करता है, एक्सपोजर्स ऊपर नीचे होते हैं, तो इन माय ओपिनियन इसकी जो एक्सपोजर एडजस्टमेंट है वो भी काफ़ी स्मूथ है। नाउ वन ड्रॉबैक ऑफ 4K रेजोल्यूशन इज़ कि ये 4K में फ्रेम क्रॉप कर देता है। I'll show you right now. तो दिस इज 1080 रेजोल्यूशन, दिस इज 4K रेजोल्यूशन। नाउ यू गाइज मे सी कि इसका 4K थोड़ा it's the focus is not as smooth as 1080p 1080 resolution. I'll show you how 1080 resolution is right now. So this is the 1080 resolution and it's very smooth. मतलब even the focus is not shifting anywhere. मैं थोड़ा पीछे जाता हूँ, focus comes right back to me. When I come close, the focus comes right back to me. Compared to 4K, focus इतना smooth नहीं है और plus frame crop हो जाती है. And on top of that, it's not a full frame camera. It's a crop censored camera. I have no idea what the difference is, but if you're someone who's really into full frame and crop sensor, do remember that this is not a full frame camera. Now coming down to the price, ये कैमरा $550 का मैंने लिया था, को ये 550 से लेके $800 तक में मार्केट में मिल जाएगा. डेफिनेटली मैंने 3 महीने तक इसके ऊपर रिसर्च की थी, तब जाके मुझे जो सेल प्राइस मिली थी उस पर मैंने ये कैमरा लिया, एंड आई थिंक इट वाज अ गुड स्टील फॉर $550. फिर मैंने इसके ऊपर इंश्योरेंस भी लिया था, दैट वाज प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट. ये मार्केट में $699 का भी है, $799 का भी है. थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, अगर ढूंढोगे तो $599 $550 में मिल जाएगा. तो फॉर दैट प्राइस आई थिंक इट्स अ रियली गुड कैमरा. इट हैज इट्स प्रोज, इट हैज इट्स कॉन्स, मतलब लेकिन इसकी जो एडवांटेजेस हैं वो इसकी डिसएडवांटेजेस से ज़्यादा है. फॉर एग्जांपल मुझे अभी इतनी नीड नहीं है 1080 रेजोल्यूशन में 120 FPS की. आई मीन आई वुड लव इट इफ इट हैड इट, लेकिन अगर नहीं है तब भी मेरा काम 720 रेजोल्यूशन में चल रहा है. और फिर जहाँ तक बात है 4K रेजोल्यूशन की, आई डोंट रियली नीड 4K रेजोल्यूशन एट दिस मोमेंट. मेरा काम 1080 रेजोल्यूशन से चल रहा है एंड आई रियली लव इट. डू रिमेंबर कि दिस ऑल दैट आई टोल्ड यू, एवरीथिंग, ऑल द एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस इज कमिंग from someone who vlogs more than he does photography. My photography, I am learning photography. I went to New York, I took some pictures. Quite frankly, मुझे photography के भी इसके results काफ़ी अच्छे लगे थे. उसके अलावा if you're a vlogger, I don't think so there's any better camera in the market for this price. इस प्राइस में इन माई ओपिनियन इससे अच्छा कोई कैमरा नहीं है मार्केट में. फॉर अराउंड 550 to $600 अगर आपको इस प्राइस में मिल जाता है. अगर इससे ऊपर जा रहे हैं अराउंड $800 तो फिर आपके पास थोड़े और भी ऑप्शंस हैं. तो अगर कोई मुझसे आके रिकमेंडेशन लेता है फॉर Canon M50 इफ़ दे शुड बाय इट और नॉट, मैं तो बोलूँगा बिल्कुल लो, अगर आपको once again 550 to 600 की प्राइस रेंज में मिल जाता है. तो yeah, this was my first ever tech review and my first ever review for the Canon M50. मैंने हर वो चीज़ हाईलाइट कर दी जो मुझे लगा इम्पोर्टेंट है, and obviously it is from a personal perspective and coming from someone who's more of a vlogger than a photographer. और हाँ, that's about it. अगले vlog में मुलाकात होती है. खुदा हाफिज़. एक मिनट, कहीं जाना नहीं. जो मेरा DJI Spark है ड्रोन, उसका नाम मैंने रख दिया शाहीन. आज से हम उसे DJI Spark नहीं बोलेंगे, शाहीन बोलेंगे. लेकिन ये जो है मुझे समझ में नहीं आ रहा इसका क्या नाम रखूं. तो आई रियली नीड योर हेल्प. कमेंट समथिंग इन द कमेंट सेक्शन, कोई सजेशन दो कि इसका नाम क्या रखा जाए. हाँ भाई, तो आज का मैसेज बीइंग काइंड प्रोजेक्ट का इज़ टू पास ऑन द नॉलेज यू हैव टू अदर पीपल. I think मैं ये मैसेज पहले दे चुका हूँ, but the whole point is knowledge is power, and you can subscribe if you want, only if you want, and do comment something. मतलब मुझे कैमरे का नाम चाहिए, nickname. I need your suggestions, so comment down below, and you can follow up on Instagram for all the daily updates. And yeah, खुदा हाफिज़.